ڈرام اور ہلچل ستا کے گلیاروں کی ہر خبر، کیونکہ اسے بننا ہے آپ کا ایجنڈا۔ دیکھیے نیوز لائن میرے ساتھ سوموار سے شکروار رات 8 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ مقصد وجود کائنات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی۔ مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کسی آواز کو نہیں سن رہے؟ کون سی آواز؟ کسی بچے کی آواز۔ جی ہاں، قرآن پاک صدیوں سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، شاید دنیا میں کوئی بھی اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار اس روشن حقیقت کو لے کر حاضر ہیں ہم۔ دیکھیے ہماری خصوصی پیشکش صدائے حق، صرف چینل 1 نیوز پر۔ کس نے رچی سازش؟ کون بنا شکار؟ کس نے کیا ظلم؟ کون بنا قاتل؟ کس نے لوٹی عصمت؟ کون بنا حیوان؟ سبھی گتھیاں سلجھائیں گے۔ دیکھیے تحقیقات سوموار سے شنیوار رات 10:30 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ دیکھیے روزانہ صبح 6 بجے الف ٹائم صرف چینل 1 نیوز پر۔ پل پل بدلتی سیاست، آداب، میں ہوں جوتسنا اور ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اپنے تاریخ ساز پروگرام صدائے حق کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سہایک پولیٹیکل ایڈیٹر عرفان رسول جی۔ اس پورے پروگرام کے مقصد کے بارے میں، ہماری اس مہم کے بارے میں، اس کے مقصد کے بارے میں پوری چرچا کے لیے، مزید چرچا کے لیے ہم ان کے پاس جائیں گے اور بات چیت کریں گے ان سے۔ تو رسول جی کیا کچھ کہیں گے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ آج وہ منظر کشی کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ کہ شاید جس کو آج عازمین حج فرض کی ادائیگی کے طور پر جب مکہ معظمہ ان کا جانا ہوتا ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے واقعہ دکھایا کہ آب زمزم کا جو چشمہ جاری ہونا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی گود میں وہاں پہنچے، اور جب پانی سے تڑپ رہے تھے، پیاس کی تشنگی بڑھ رہی تھی، وہ جنگل، وہ صحرا، وہ ریگستان، وہ ڈیزرٹ جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ کوئی ہریالی تھی۔ چینل 1 کی خاص کوشش آج ہم ناظرین کو، اپنے ویورز کو وہاں لے چلیں گے، وہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں مار مار کر اپنے ایڑیوں کے دم پر، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی، مشیت الہی، بار الہ کا حکم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ملی تھی بشارت وہ نظر آ رہی تھی وہاں، کہ جس طرح سے حضرت ہاجرہ ایک ماں کا دل
جو صفا سے مروہ کی طرف 7 چکر لگاتی ہیں، 8واں چکر شروع نہیں ہوتا ہے کہ زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ آب زمزم فارسی میں پانی کو آپ کہتے ہیں، عربی میں ماں کہتے ہیں، تو ماء زمزم جو جاری ہوا تو یقیناً ایسا لگا کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے اور اس چشمے کو روکا جائے، تو اس میں زم زم یعنی ٹھہر جا، زم زم کی آواز آئی، پانی ٹھہر جا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ریگستان کہیں سیلاب میں تبدیل ہو جائے۔ تو بہرحال یہ قدرت اللہ کی ہے اور یہ مشیت الہی ہے اور یہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے، اس میں مرضی کسی کی نہیں ہوتی، وہی کرتا ہے، وہی کراتا ہے، نہ قسمی دہانت نہ قسمی دہت خدا می دہت۔ تو ایک اور بہت بڑی نظیر سے آج ہم گزریں گے جو نظیر چینل 1 نے پیش کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ہاجرہ کے ساتھ اس مقام پر چھوڑ کے آنے کا مقصد اور راز، اور حضرت سارہ نے کیوں اس بات کا عہد کیا، کیوں اس بات کی ضد کی، لیکن آج یہ پتہ چلتا ہے تاریخ کے مطالعے سے کہ وہ وہی مقام ہے جو مقام ابراہیم ہے، جہاں نماز پڑھنا عازمین حج کے لیے ضروری ہے، اور وہی صحیح ہے جو صفا و مروہ سے جو حج کے اہم ارکان میں آج بھی شامل ہے۔ بالکل، جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے حضرت سارہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جیسا میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جس طرح حضرت سارہ کہہ رہی تھی اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تأمل تھا، تردد تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ ایسا کیا جائے کہ نہ کیا جائے، لیکن ان کو بشارت ہو گئی، ان کو حکم الہی ہو گیا کہ اے ابراہیم تم عمل کرو اور جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو۔ تو کہیں نہ کہیں مستقبل کی ضمانت اور مستقبل کی گواہی دینی تھی، اور امت کا سلسلہ، اور اس طرح سے جس طرح سے آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، دنیا کا کوئی بھی پانی ایسا نہیں ہے جو آب زمزم کا مقابلہ کر سکے، وہ شفا بھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہاں سے لوگ تبرک کے طور سے لاتے ہیں اور عازمین حج کو پلایا جاتا ہے، اور جب آپ صحیح وہاں کرتے ہیں، جب محنت کرتے ہیں، اس کے دوران جب آب زمزم پیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے دوبارہ توانائی اور طاقت مل جاتی ہے، تاکہ 7 چکر آپ صحیح کے اور 7 دفعے آپ کعبے کا طواف کر سکیں۔ بالکل، علیہ السلام کے یہاں جس طرح سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کون تھے، اس بارے میں بھی جان لیتے ہیں ہمارے سہایک سے، عرفان رسول جی سے۔ تو اسماعیل علیہ السلام لگاتار جس طرح سے نام آ رہے ہیں سامنے، ہم نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانا، ان کی دعوت کے بارے میں جانا، جو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ حق کی طرف جاؤ، برائی کو چھوڑو۔ میں جسنا حضرت اسماعیل ذبی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو بشارت دی تھی کہ تم سے ایک پورا سلسلہ چلے گا۔ حضرت سارہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے وہ اولاد عطا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، اور وہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن حضرت ہاجرہ کے ذریعے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، یعنی ان کے ذریعے ایک پیغام اور ایک سلسلہ چلنا تھا۔ حضرت ابراہیم کو ذبی اللہ کہا گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں یہ کہا کہ سب سے عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا آپ کریے، انشاءاللہ ہمیں صبر والا اور یقین والا پائیں گے۔ تو قدرت کا کہیں نہ کہیں بہت بڑا کرشمہ ہے جو چینل 1 کی خصوصی پیشکش میں آج ہم دینے جا رہے ہیں، دکھانے جا رہے ہیں کہ یہ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کس طرح ہم سمجھیں اور کس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کس طرح ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام سب کے لیے ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ جو چیزیں سمجھنے والی ہیں یقیناً وہ سمجھنا چاہیے، کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ایمان والوں کے لیے یہ بات سمجھنا بے حد زیادہ ضروری ہے، اور ایتہاسک کوشش کہا جائے گا اسے، کیونکہ چینل 1 نیوز آف انڈیا اور IRIB کی طرف سے یہ ایک ساتھ ملی جلی کوشش ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کو، آخر کیا ہوا تھا۔ خدا پیدا ہے، اسماعیل
और उस अजीम सिलसिले का आखिरी पैगंबर अहमद। मेरी सुराही पानी भरा है पीने के लिए। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं और ना ही तेरी रहनुमाई की। मुझे कनीज नहीं चाहिए। तू मेरी कनीज नहीं, तू पैगंबर की बीवी है, पैगंबर की बीवी। मेरी मोहब्बत से मायूस हो गए ऐ अल्लाह के नबी, तर्क कर दिया मेरी मोहब्बत को। मायूसी शैतानी वसवसा है, धोखा ना खाना। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, मेरी रिसालत के लिए। सारा, हसद की आग 100 गुना ज्यादा है नमरूद की आग से। गुलजार बना दे इसे। निकाल दो उन्हें। हाजिर मेरी बीवी है, इस्माइल मेरा बेटा है। नहीं नहीं सारा, मैं ये नहीं कर सकता। बारे इलाहा, ये इब्लीस मरदूद नफरत का बीज बो रहा है मेरे में। पनाह मांगता हूं मैं। अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को यहां से ले जा, यरूशलेम की तरफ, और दाखिल कर दे इबादत की सरजमीन पर, हिजाज। तेरा परवरदिगार इनका मुहाफिज है तमाम शर और फितने से। रुखसत का वक्त है हाजर। खुदा चाहता है कि तुम यहां रहो और मैं अबरोन में। ऐ खुदा के पैगंबर, आखिर हम यहाँ से कहाँ जाएं? इस मकाम को सफा कहते हैं और वो चोटी है मरवा की। वही के दौरान जिब्रील ने इस बारे में बताया था। हम मर जाएंगे
इस गर्म सहरा में रहम करो पैगंबर। अपने बच्चे पर यहाँ हर तरफ खुश्की और तपिश है। ऐ अल्लाह, इस मुकाम को अम्न की जगह करार दे। मैं अपनी नस्ल को बैतुल हराम के करीब इस बंजर वादी में छोड़े जा रहा हूँ नमाज कायम करने के लिए। ऐ परवरदिगार, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इसी के मुताबिक इन्हें रोजी दे, ताकि इस तरह ये तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। अल्लाह का हुक्म हुआ और सहरा में हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की सरजमीन पर छोड़ आए। इस बाबत क्या कुछ कहें? देखिए दोस्तों, सीधा जो मैं पहले बता चुका हूं और शायद इस पर रोशनी किसी हद तक डाली जा चुकी है कि कुदरत का कानून, कुदरत की मर्जी, राजी बरज़ा इलाही रहना पैगंबर इस्लाम को, जिस तरह हजरत हाजरा कह रही हैं, ए अल्लाह के पैगंबर मुझे किसके भरोसे यहाँ छोड़ रहे हो, लेकिन बशारत है उनको कहीं ना कहीं इस बात की इत्तला और इस बात का इल्म है, वही इलाही के जरिए उन्हें ये बताया जा चुका है कि ए इब्राहिम, हाजरा और अपने बच्चे को तुम उस मकाम पर छोड़ दो नमाज कायम करने के लिए, ताकि नमाज कायम हो सके। और नमाज की सुन्नत है जो वहाँ हजर अस्वद के करीब मकाम इब्राहिम पर आज तक अदा की जाती है। और परवरदिगार इस माँ यानी हाजरा और बेटे यानी हजरत इस्माइल की हिफाजत करेगा, कुदरत हिफाजत करेगी, खुदा हिफाजत करेगा। तो हजरत इब्राहिम को इस बात का यकीन हो गया था कि वो छोड़ तो रहे हैं लेकिन इसमें मर्जी कुछ और है, राज कुछ और है, इसकी वजह कुछ और है, जो आज दुनिया के सामने है, जो आज दुनिया के सामने नजर आ रही है। सबसे पहला शहर जो वजूद में आया वो शहर मक्का था, यानी उस रेगिस्तान में आबाद है, एक दुनिया आबाद है। तो कहीं ना कहीं मुस्तकबिल की बहुत बड़ी तैयारी थी जो उस वक्त शुरू की गई थी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो वली इलाही हुआ और उसके दौरान यही हजरत इब्राहिम को जिस तरह से बातें कही गई, उसमें एक अलग ही बात ये भी कही गई थी कि तेरा अल्लाह ही इनका मुहाफिज है। आखिर इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, परवरदिगार के लिए मैंने कहा वही इलाही के जरिए, नहीं अल्लाह के पैगंबर को जो पैगाम मिलता है अल्लाह की तरफ से वो वही इलाही के जरिए नाजिल होता है और जिब्रील अमीन के जरिए नाजिल किया जाता है और ये बताया जाता है कि ऐ पैगंबर, जो हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करो और खुदा जानता है ये राज। और यकीनन जब पैगंबर को इल्म है, पैगंबर को पता है, पैगंबर को वही के जरिए बताया गया है, तो दुनिया उस राज को नहीं समझ सकती। वही सारी चीजें, सारा मंजर आज सामने है कि जिस तरह से मक्का मुअज्जमा पर यानी उस वक्त का सहरा, डिजर्ट और रेगिस्तान, तपती हुई रेत और इस कदर वहां तपिश, न पानी न खाने का कोई साजो सामान। शायद आता है तारीख में कि वो पानी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां छोड़ा था वो उसी रोज या शब रोज में खत्म हो गया। आखिर पीने का पानी का भी कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन कुदरत की मर्जी, कुदरत का कानून और कुदरत के फैसले शायद कोई नहीं समझ सकता कि उसके असबाब क्या हैं, उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है। आज उसकी वजह यह थी कि दुनिया को उस बैतुल हराम, मस्जिद हराम, उस मक्का मुकर्रमा और बैतुल्लाह का तवाफ और सही करनी थी। वहां कहीं न कहीं वो मुकद्दस मकाम वजूद में आना था जिसकी बुनियाद उस वक्त पड़ चुकी थी, जिसका सिलसिला शुरू हो गया था। उस सिलसिले को अगर आज के अकॉर्डिंगली, आज के मुताबिक आप देखें तो लाखों फर्जंदान तौहीद हर साल हज के मौके पर हाजिरी देते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ सुन्नतों को अदा करते हैं। बिल्कुल, आपसे फिर से मजीद चर्चा के लिए जुड़ेंगे रसूल जी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए
तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की सरजमीन पर छोड़ आते हैं, तन्हा और सहरा में छोड़ आते हैं। दोनों माँ बेटों का इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ चलते हुए क्या हुआ? पहले मैं अर्ज करूंगा, मक्का की जमीन तो अब है, जो मक्का सबसे पहला शहर है जो वजूद में आया, लेकिन उस वक्त शायद वो एक रेगिस्तान था जो दुनिया सोच नहीं सकती थी, जो अल्लाह और उसके पैगंबर की मर्जी थी। बिल्कुल, ये उससे पहले नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन अब हम वो देख लेते हैं जहां पर हजरत हाजरा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब अकेला छोड़ दिया गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तुझे महसूस कर रहा हूँ, करीब से करीब, पहले से भी करीब, तेरी बारगाह की तपिश को महसूस कर रहा हूँ। इस्माइल तेरा बेटा, उसकी जुदाई में बेताब हूं। इस्माइल जान से भी ज्यादा अजीज है। अब वो जवान हो गया है। सरजमीने हिजाज की तरफ लौट जा एक मर्तबा और अपने बेटे इस्माइल को आमादा कर कुर्बानी के लिए। नहीं, यकीन नहीं आता। नहीं, कनानी हूं इसलिए तो मुझसे ये चाहता है जो अपने फर्जंदों को आग में झोंक देते थे अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने जिगर गोशे को कुर्बान कर दूं। ताकि हर कोई अपनी औलाद को कुर्बान कर दे। इस तरह तो नस्ल ही बाकी नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं,
मुझे जाना है सारा, बुलाया गया हूं। ऊंट तैयार है दरवाजे पर। ठीक है। इंतजार कर रहा हूं आपका। तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से हुक्म हुआ, फिर से फरमान जारी हुआ कि हजरत इब्राहिम को अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करना होगा, फिर से उन्हें आमादा करना होगा कुर्बानी के लिए। इस पर क्या कुछ कहेंगे? एक बशारत दी गई और ये खुशखबरी और ये ख्वाब में कहीं न कहीं पैगंबर को ये हुक्म दिया गया कि इब्राहिम सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, इससे अजीज कोई चीज नहीं। उससे पहले आपने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे कि बेटा मुझे जान से ज्यादा अजीज है, मेरा बेटा है इस्माइल। तो अब यहाँ पे करिश्मा ने कुर्बानी जो शुरू हुई, जो कुर्बानी का अम्र शुरू हुआ, कुर्बानी की जो शुरुआत हुई, वो दरअसल नियत का इम्तिहान था और बहुत बड़ा इम्तिहान था। आजमाइश का यह दूसरा दौर या तीसरा दौर कह सकते हैं कि ए इब्राहिम, तुम अपने बेटे को यानी सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अब किस तरह कुर्बान करें, एक बाप का सवाल है, बाप अपने बेटे को कैसे कुर्बान करे, लेकिन यह सोच अलग है, ये इसका मकसद अलग है, मगर फैसला तो जाहिर बात है कि हुक्म है तो करना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह तय किया, यह फैसला लिया कि जो रब की मर्जी वो हमारी मर्जी और जो रब का कौल वो हमारा कौल, जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल करेंगे। मैंने पहले कहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब यह बयान किया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, तो उन्होंने कहा फसजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अहले सब्र वल ईज़ान, आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है आप उस पर अमल करिए, हमें इंशाअल्लाह सब्र वाला और यकीन वाला पाएंगे। तो ये बयान बेटे की तरफ से आता, वो बाप की मोहब्बत, एक बाप को कुर्बान करने का हुक्म दिया जाता है और बेटा कहता है लब्बैक, मैं हाजिर हूं। तो इस दुनिया में, इस समाज में, इन हालात में ये भी एक कहीं ना कहीं हमारे लिए आज रिलेवेंट है। और कुर्बानी का मतलब और कुर्बानी का दर्जा और कुर्बानी का लेवल समझने के लिए कि समाज इसको किस तरह समझे, लोग इसको किस तरह समझे, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है कहीं ना कहीं उसकी मर्जी कुछ और है, वो चाहता कुछ और है, वो कहता कुछ और है, और उससे उम्मत का एक बड़ा सिलसिला और उम्मत को एक पैगाम दिया जाता है। चूंकि वो पैगंबर है अल्लाह का, इसलिए उम्मत को पैगाम देना है, तो पैगंबर के जरिए एक पैगाम दिया जा रहा है। तो कुर्बानी का मतलब यहां सिर्फ ये है जिसके लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप के हुक्म के बाद फौरन तैयार हो गए। बिल्कुल, लेकिन रसूल जी जिस तरह से हुक्म हुआ, जो नजीर पेश करने की बात कही जा रही थी, और साफ तौर पे हमारे नाजरीन को समझाने के लिए ये बताइए कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कुर्बानी देने के लिए, वो भी खुद के बेटे की, और वो खुद के बेटे की कुर्बानी देने को तैयार भी हो गए। यहाँ पर जिस तरह से नियत की बात कही गई है, आपने जिस तरह से समझाया जी, कि मैंने वो कहा नियत को नियत का एक टेस्ट करना इम्तिहान चाहते है थे। और नियत का इम्तिहान पेश ताकि दुनिया समझ सके में जो चीजें पेश की जाएंगी उसका कहीं ना कहीं उसके असबाब कुछ और होंगे, उसकी वजह कुछ और होगी और वो सिलसिला कुछ और होगा। दरअसल कुर्बानी का सिलसिला रहती दुनिया तक, क़यामत तक कायम करना था। तो इसलिए इस सिलसिले की एक शुरुआत थी और पैगंबर का इम्तिहान इसलिए था कि दुनिया समझ सके कि अल्लाह ताला कभी भी किसी से आजमाइश या इम्तिहान ले सकता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला किसी से भी आजमाइश या इम्तिहान ले सकता है। तो सदाए हक के जरिए हम नाजरीन के साथ कर रहे हैं आखिर कुदरत क्या चाहती है और कुरान की उन आयतों में आखिर क्या कुछ कहने की बात रखी है, और साथ ही साथ जिस तरह से अल्लाह ताला अपना हुक्म बताते हैं और वही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी इब्राहिम ने अपने इस तमाम नज़ीर के जरिए, और जो काम उन्होंने किए अल्लाह ताला के हुक्म के बाद, ये तमाम बातें पेश करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल सदाए हक में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे इसी हकीकत के साथ। तब तक के लिए
आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना।